Greetings everyone. So we are here in 2021 safe and sound, that is by God's grace, and we should be very thankful. So I welcome you all to the 2021 summer camp of Army Public School Old Camp. And children, we are going to start learning spoken English. Learning in the sense you already know the language. It's not that you are going to start from zero. Is it so? No. Thank you for saying no. Yes, you are not going to start from zero. We are just going to get command on this language. So the question arises that why is it important to get the command on this language? बहुत ज़रूरी है. क्यों? Can you think of something? I'm giving you 2 seconds. Can I hear? Right. You thought it right that yes, it is the need of the hour. ये वक्त की ज़रूरत है, डिमांड है, नीड है. क्यों? Why? Why in the sense because whatever our thoughts are there, we want everyone to understand, isn't it? What is our motive when we go somewhere, that whatever we are saying, people should understand us, people should listen to us. And if you really want to become a successful person in your life, you know it that what is important? English, right? So English. Yes, absolutely. You have to walk in English, talk in English, think in English, eat English. Why? Because it is the need of the hour. My respect to all the languages, mother tongue, my sincere respect to my mother tongue as well as our national language, Hindi. But if I want to go to New Zealand, or suppose I'm a North Indian, if I want to go and do something, some social work, or I have developed a good machine, I want that every place of my country should have that machine. So if I go and talk to the locals in Andhra or in Tamil Nadu or in Karnataka or in Kerala, I need to express myself. Yes or no? कैसे बताऊंगी? वहाँ के लोगों से मैं कैसे बात करूंगी? How will I communicate with them? Through this language. So there is a reason, and the reason is that this language is ruling the world. You know which language is spoken the maximum in the world, or by maximum number of people? It is Mandarin. अपनी जी के भी साथ साथ बढ़ाते जाइए. It is Mandarin or the Chinese language which is spoken by the maximum number of people in the world. फिर मैम आप कैसी बात करते हो? आप कह रहे हो चाइनीज आनी चाहिए? No. Why? Okay, I know Chinese, but when I go to France, they do not know Chinese, but they do know English. I went to Kerala for tourism. I want to buy local stuff. Can I speak Chinese and do shopping? No. But if I speak English, I can definitely get something. Right? Why? Because this language has successfully covered the world. So, is it a difficult language? Okay, we'll see to it. Today's session is the ice breaking session. हम लोग बर्फ को तोड़ने जा रहे हैं. कौन सी बर्फ? ये लिटरल मीनिंग है. एक चीज और, शुरू के 2-3 दिन में इंग्लिश में बात करूंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको समझ में आ जाए. Later on, we will be talking only in English. That's a promise. That's a promise. You're going to promise me. Okay. Perfectly all right. Thank you so much for promising. Okay. So today's session is ice breaking session. हम ये ice को break करने वाले हैं. कौन सी ice तोड़ रहे हैं हम ये वाली ice तोड़ रहे हैं कि English
को बोलने में लोगों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है, मिथ आती है, आपके दिमाग में बर्फ जम गई है, हम उस बर्फ को तोड़ने जा रहे हैं आज के सेशन में, राइट? सो पहली चीज इंग्लिश। अच्छा, उसके पहले आप मुझे बताओ कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आइस हमारी टूट गई है, टूटने वाली है, तो अब इसको मिटा सकते हैं हम। ओके, so tell me, which is the most important thing in the world? Can I hear some answers? Yes, right. Very important these days, and that is oxygen, right? We can survive only because on this planet Earth, because we have an atmosphere. Atmosphere has air, and air has oxygen. So for survival, it is said that oxygen is necessary. We are very lucky, we are safe and sound inside our houses, and but you know it, in last 60-70 days we have suffered a lot for this thing. Corona, this pandemic has taught us many new words like SpO2, कितना हमारी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, oximeter, how to measure, what should be the upper limit, and when should we contact the doctor or the hospital, isn't it? So it is more proven that oxygen is the most important thing for us, and without it we cannot survive. Perfectly all right, point taken. What is next to oxygen? Bhai, everyone wants to be successful. I'm teaching in an English medium school. तो क्या मैं विज्ञान हिंदी में पढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, कठिन होगा। बट यही वैज्ञानिक अगर वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहेंगे तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई टीच यू साइंस इन इंग्लिश, और यू आर स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर मदर टंग. Why English is important? Again, because it is the need of the hour. So I told you, or this fact is established, that the most important thing for us is oxygen. There is no doubt about it. I keep English as next to oxygen. Oxygen के बाद आपको अगर survival के लिए, मैं जीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर बात हो रही है कि एक सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री बनने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? इंग्लिश. सो आई पुट इंग्लिश नेक्स्ट टू ऑक्सीजन. इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. इस बात की आप लोग गांठ बांध लीजिए. English is next to oxygen if you really want to do something. बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है भाई. आप एक मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनिए. तो आप सिर्फ अपने देश के समुद्र में ही तो नहीं काम करना चाहोगे ना, और इवन अपने देश के भी अगर आप मरीन फ्लोरा एंड फौना पे काम करना चाह रहे हैं तो भी वहाँ पे आपको साइंटिस्ट कुछ तमिलियन भी मिल सकते हैं. यू मे गेट कम अक्रॉस सम केरलाइट, यू मे कम अक्रॉस सम बंगाली. विल यू टॉक इन देयर मदर टंग? नो. You definitely need one language which is common to all, and that is English. So yes, you want to do a lot. You want to go and study the Japanese ocean, marine life. This will take you. ठीक है ना? So English is next to oxygen. अगर ये भाषा बहुत सारे लोगों ने, अच्छा चलिए एक चीज़ हम आपसे पहले पूछते हैं. whenever I talk to people, my question is that for speaking English, what are your problems? So people say grammar. Okay, I'll write one by one. ठीक है, people say grammar, people say vocabulary. Perfectly all right. Right. People say hesitation.
but I tell you, these are the basic grammar, vocabulary, hesitation. इससे भी बड़ी एक बीमारी है, इससे भी बड़ा एक सिंड्रोम है, और वो सिंड्रोम है लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, दैट डाउट, दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो इस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे। इसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल है, चाहे आपकी शाइनेस है, चाहे आपकी हिच है, चाहे आपका हेसिटेशन है, वॉट एवर यू से, इट कम्स इनटू दिस बीमारी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और इस तरह की हर बीमारी का इलाज कहाँ है? कंट्रोल योर लाइफ फ्रॉम हियर, हैव अ हार्ट, have feelings like kindness, helpfulness, सब कुछ होगा, हम लोग बात करेंगे उस पर भी। लेकिन इस बीमारी का इलाज लोग क्या कहेंगे कुछ नहीं है, आपके अपने पास है, यहाँ पर है। लोगों को कहने दीजिए। आप मुझे बताओ, when you were born, you are a small baby, right? Suppose आप बंगाली हो, क्या आपको किसी ने बंगाली की वर्णमाला सिखाई, ग्रामर सिखाया, सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया नहीं। हुआ क्या? आप सुन रहे थे। When you were born, you were listening to it. Then you become a little old, few months old, you started speaking like baba, tata, papa, है ना, syllables, right? थोड़े आप और बड़े हुए तो पापा, मामा, मम्मम, whatever children speak, 1 word, 2 word, 3 word. आप 2-3 साल के हुए, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने शुरू करे। क्या कोई आपको अल्फ़ाबेट सिखा रहा है? क्या कोई आपको ग्रामर सिखा रहा है? क्या कोई आपको टेंसेस सिखा रहा है क्या? नहीं ना। क्यों हमको आ रही है? हमारा ब्रेन जो है बड़ा पावरफुल है, पता है कि नहीं? बहुत पावरफुल है। इसका एक कॉन्शियस माइंड है जो आप मुझे सुन रहे हो, और एक सब कॉन्शियस माइंड है जो कि बातें रजिस्टर कर रहा है। सो द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स, चाइल्ड इज लिसनिंग टू द ग्रैंड पेरेंट्स, टू द डॉक्टर्स, जो भी उसके सराउंडिंग एटमोसफियर में है, द चाइल्ड इज लिसनिंग टू एवरीवन। ओके, ठीक है। तो सब कॉन्शियस माइंड वोकैबुलरी भी रजिस्टर कर रहा है, ग्रामर भी रजिस्टर कर रहा है, एंड इफ यू आर बंगाली यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू आर स्पीकिंग, है ना। मैं यूपी की हूँ, मुझे हिंदी आ गई। जो बिहार में पैदा होगा उसको भोजपुरी, जो ईस्टर्न यूपी में है उसको भोजपुरी, जो लोकल वर्नाक्यूलर है, जो भाषा घर में पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो भाषा आपको सुन सुन कर आ गई, और आपने एक दिन में पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस या पैराग्राफ फॉर्मेशन नहीं शुरू करे। यू हैड ग्रोन ग्रेजुअली, है ना। आपने मोनोसिलेबल से शुरू करा, 1 word, 2 word, 3 word, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, और हमेशा सही बोला क्या? नहीं ना। गलत भी बोला तो आपको करेक्शन किया गया। आप गलत बोलोगे, आपको करेक्शन किया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आप जब LKG में थे आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए, आप जब प्रेप में आए आपने 2 letter 3 letter वर्ड्स पढ़े, एंड सो ऑन। टेक माई वर्ड, राइट नाउ इफ यू आर इन क्लास 6, 7, 8, 9th middle school, you very well have the command on at least 6 to 7,000 words. I'm saying 6 to 7,000 words. बहुत है यार, बहुत है, बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में बात करने के लिए। एक जनरल बेसिक इंग्लिश में बात करने के लिए आपकी वोकैबुलरी गुड इनफ है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। रही बात ग्रामर की, भाई क्लास 1 से आप लोग नाउन भी पढ़ रहे हो, आप प्रोनाउन भी पढ़ रहे हो, वर्ब भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, तो ये प्रॉब्लम भी अपनी सॉर्ट आउट हो गई। इस बीमारी को तो हम लोग, ये भी इसी बीमारी का हिस्सा है, हेसिटेशन। ये हम लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे? ये हम लोग विल यूज आवर माइंड टू कंट्रोल
आर ऑल द प्रॉब्लम्स, चाहे हेसिटेशन है, शाइनेस है, लोग क्या कहेंगे, ये सारे सिंड्रोम हम लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे, यहाँ से। कैसे, आप देख लीजिए। आपको अभी का अभी आपने कहा कि मैम इंग्लिश तो बड़ी ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, जस्ट वेट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश बड़ी टफ लैंग्वेज है। अच्छा, कोई नहीं, चलो इंग्लिश और हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है। हिंदी आई रोट इन हिंदी और इंग्लिश आई रोट इन इंग्लिश। ओके, परफेक्टली ऑल राइट। अभी ये मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इंग्लिश। ओहो, देख लीजिए, आप खुद ही गलत ना। छोटी की मात्रा आधा न, बड़ी की मात्रा, क्या कोई मात्रा है यहाँ? कुछ नहीं है, कोई मात्रा है नहीं है। ई पे अंग की बिंदी, आधा ग, ल में छोटी की मात्रा, और ये वाला श। विच लैंग्वेज इज इजी, है ना? I have proven it that English is the easiest language. And children, Chinese वगैरह कभी आप देखिएगा, गुजराती भी देखिएगा, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे बोलनी समझनी तो आती है, लिख नहीं पाती हूँ। एवरी लैंग्वेज, आप साउथ की लैंग्वेज देख लो, इट इज सो डिफिकल्ट टू राइट, है ना? तो जो भाषा, actually it's a mixture. One fine day I'll tell you, English is basically a mixture of many languages. Restaurant, bureaucrat, ये सब क्या है? ये सब French words, ठीक है? So English is basically a mixture and it is very easy language. तो जो आपके मन में डर है भगवान के लिए, उसको निकाल दीजिए। चलो निकालो। Everyone do like this. Cross your hands. You have removed the fear from your mind. Okay? आगे बढ़ते हैं. So, English is an easy language. It is next to oxygen. आप पैदा होते हो, आप कोई ग्रामर नहीं, अभी हम बोल रहे हैं हिंदी, हम और आप, और if we talk in our mother tongue, do we think about the समास, अलंकार, grammar, वर्ग, noun, verb, pronoun? Do we think? No, we just speak because the subconscious mind has already recorded the basic motherboard जो है आपका, उस पे सब पे कोडिंग हो चुकी है। हमको इंग्लिश की कोडिंग है हमारे में, हम सिर्फ बोल नहीं रहे। कोडिंग इज वेरी मच देयर, ठीक है? सो लेट अस मूव फर्दर। ओके, ये भी हमारा मिथ था कि इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ये भी दूर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आपके पास बेसिक 6 से 7 हज़ार वर्ड्स हैं जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। एंड हियर कम्स another new learning for you children. Please note it down. What are soft skills? What do you mean by soft skills? Soft skills होती हैं हमारी communication skills. What are our communication or communicative skills? We call them soft skills. जब आप interviews के लिए जाएंगे, although the world has changed these days, we have even our interviews taking place virtually, है ना? Zoom पे, Google Meet पे, Teams पे interviews वगैरह भी चल रहे हैं। तो उसमें आपकी soft skills देखी जाती हैं। What do you mean by the soft skill? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वेदर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ कंप्लीटली और नॉट। आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और आप अटक रहे हैं, आप उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली।
व्हाट विल हैपन? आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा क्या? नहीं। आप 1.5 साल से स्कूल में हो, उसके पहले आपने देखा है कि जो भी बच्चे माइक पे बोलते हैं या जो भी बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स सक्सेसफुली। क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स। सी चिल्ड्रन, मैं आपको साथ में कुछ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराती जाऊंगी, आपके कुछ मिथ्स ब्रेक करती जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं, और इफ आई एम वेरी ब्यूटिफुल, और इफ आई एम वेयरिंग वेरी गुड क्लोथ्स, लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल दैट, आई विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। आई एम सो सॉरी। धरती पे आके गिरो, जगो, वेक अप, नॉक नॉक। ये गलत कंसेप्ट है कि आपको अच्छे कपड़े या ब्रांडेड क्लोथ से ही आपको बहुत अच्छा इम्प्रेशन मिलेगा। इट इज ओनली टिल यू एंटर द रूम. Okay, she's nicely dressed. Okay, he's nicely dressed. Okay, she looks beautiful. Okay, he looks handsome. That's it. Khatam. The moment you come close and you open your mouth, that is your real personality. Yes. Take my, just again गांठ बांध दीजिए. Note it down somewhere that your personality is not by your looks. ये मतलब नहीं है कि आप किसी फॉर्मल गैदरिंग में इतनी बड़ी सी दाढ़ी लेके चले जाओ, या चिप्ड ऑफ नेल्स लेके चले जाओ, या शैबी हेयर लेके चले जाइए. एक general presentation is very much essential. I'll come to it one day, not today. But the misconcept that if you're beautiful, if you're wearing branded clothes, then oh my god, that's a very very wrong concept. आपकी personality होती है when you open your mouth, and what comes out, how does it come out, like how it comes out. I'm so sorry there. What comes out, क्या content है, knowledge है ना. How it comes out, आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं. आप बड़ी स्लैंगिश लैंग्वेज में हैं, आप बड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में हैं, या आप बड़ी ही फॉर्मल लैंग्वेज में हैं. इट डज मैटर, है ना. इट डज मैटर. और ये आपकी पर्सनालिटी होती है. ये बात आप बिल्कुल 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 100 नहीं 1000% आप गांठ बांध लीजिए. आपकी नीट एंड क्लीन रहिए, एक फॉर्मल अटायर में रहिए, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनिए, आयरन्ड क्लोथ्स पहनिए, लेकिन डोंट रश आफ्टर दिस ब्रांड कॉन्शियस लुक्स. नो, it does not matter. Your content, your knowledge, your soft skill, these are the things which are important, right? So today we will do the activity of self introduction. How you are going to introduce yourself. पहली चीज आप लेंगे greeting. First point is greeting. How are you greeting? अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप बिल्कुल हाय, हेलो, व्हाट्सअप ये सब कर सकते हैं. बट इफ यू आर मीटिंग मी, इफ यू आर मीटिंग योर एल्डर्स, इफ यू आर मीटिंग योर अंकल्स, आंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, फॉर्मल प्लेस, स्कूल, प्रिंसिपल, एनीबडी इन द ऑफिस, भाई ये आप आज के लिए तो नहीं सीख रहे हो ना. दिस इज फॉर द लाइफ टाइम नाउ. So if you are in a formal setup, if it is till noon, good morning. From noon till 5 o'clock, it's good afternoon, 4:35. And beyond that, it's good evening. अगर आप रात में 9 बजे भी किसी के घर जा रहे हो या फॉर्मली किसी से मिल रहे हो, आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे. You will not say good night, you will say good evening. गुड नाइट जब आप निकल रहे हो बाहर, तब आप गुड नाइट करेंगे. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक्टिविटी कराऊंगी तो यू विल से गुड आफ्टरनून मैम. ठीक है. नेक्स्ट आपका आएगा माई नेम इज. 4 तरीके होते हैं. यू विल स्पीक अबाउट योर नेम.
There are 4 ways in which you can speak your name. And okay, I am Garima Srivastav. My name is Garima Srivastav. I am Garima Srivastav. ये तीनों सही हैं, ठीक है. Suppose I say I'm Ruchi Chawla. I am Ruchi Chawla. My name is Ruchi Chawla. But ये तीनों सही हैं. गलत क्या है? Myself. कोई नहीं बोलेगा myself गरिमा श्रीवास्तव, myself रुचि चावला, myself अक्षय कुमार. नहीं बोलना है, ठीक है. नहीं बोलना है. क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं यूज करते हैं, एज अ रूल नहीं यूज करते हैं. सो जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस है माई सेल्फ कहते हैं वो गलत कहते हैं, ठीक है. सो इट इज आई एम, और आई एम को भी ए हटा दीजिए, आई एम, ठीक है. एक दिन मैं आपको फोनेटिक्स भी सिखाऊंगी, नॉट टुडे, ठीक है. आई एम, या बेस्ट इज माई नेम इज सो एंड सो, है ना. आजकल लोगों के पास बहुत टाइम नहीं है, तो डोंट थिंक दैट यू कैन कीप ऑन स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेज एंड पीपल हैव द पेशेंस टू लिसन टू यू. नो, you have to be short, sweet and crisp. Crispness in your speech is very important. आप fake style नहीं लेंगे, आप fake accent नहीं लेंगे. आप standard in India we speak British English, Queen's English भी इसको कहते हैं. हम उसमें बात करेंगे, लेकिन हम जैसे नॉर्मली हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम नॉर्मली इंग्लिश बोलेंगे बिना फॉल्स एक्सेंट के. बट इट शुड बी स्मार्ट, स्वीट एंड क्रिस्प, ठीक है. सेकेंड इज योर नेम. थर्ड यू विल स्पीक आप कहाँ को बिलोंग करते हो, ठीक है ना. सो यू विल स्पीक दैट प्लेस. सपोज आई एम टेकिंग place. You'll say I am from Andhra Pradesh, I am from Hyderabad, I am from New Delhi, I am from Dehradun, I am from Lucknow, I am from Kanpur, I am from Punjab. लेकिन अगर आप इलाहाबाद के ही हो, then what will you say? So you will say, I'll tell you, you will say I am from Allahabad itself. मैं इलाहाबाद का ही हूँ. I am from Allahabad itself. You will speak like this. Am I clear? Right? Next is you will speak about your family. Okay. There are 5 members in my family. Or there are 5 people in my family. My parents, my grandparents and I. Or my parents, my uncle, my elder brother और my younger brother. हमेशा elder और younger करते हैं, brother और sister आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा. लेकिन आप कभी भी senior brother, junior brother नहीं करेंगे. ये एक बहुत common error है which people do, है ना. तो आप सिर्फ करोगे elder brother and younger brother. Is that clear to everyone? Pronunciation पे भी मैं एक दिन एक क्लास लेने वाली हूँ. It's parents. ऐसी कॉमन एरर बिल्कुल मत करिए कि लोगों को लगे अरे यार पेरेंट ही नहीं बुला पा रहा है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी. It's parent. It's grandparent. Parent is wrong. ठीक है. It's parent. It's grandparent. ठीक है. So you will speak about your family and lastly you will speak class, study. ठीक है. I study in class 6. 6th नहीं बोलेंगे, वो ऑर्डिनल्स हैं, उस पर मैं एक दिन फिर आऊंगी. I'll explain it to you. You will say I study in class 6. I study in class 7. I am a student of class
7. I'm a student of class 6. So this will be today's activity. You all have to self-introduce. You have to introduce yourselves, and then in future we will be, as and on the classes will go on, I'll be teaching you how to get command on this language, how to make English your cup of tea. ठीक है, thank you very much. Thank you very much. Till then, take good care of yourself. Bye bye.